Hello everyone. In the last video lecture we talked about the definition of the green function and the symmetry of that green function. Today first of all we will have a definition of half space. What is half space? If a space is r raised to power n, then its half space will be denoted by like this, r power n, and this is positive sign. Okay, in the base you will write down the positive sign like this. So that will be the notation. So half space is defined by this all points in Rn where this nth coordinate is positive here. Okay, so that will be the half space. If we talk about in particular, if we say n equal to 2, so we will talk about the half plane. So if we say, you know that is y axis, this is x axis, and here is x positive, and here is x negative, here is y positive, and here is y negative, right? You know that. So what will be r2? If you will talk about r2 plus what it will be, that will be set of all ordered pair xy, where xy belongs to r square, such that y is positive, right? Such that y is positive. So all such ordered pair in R2 R square such that y is positive. So what does it mean? That means that will be the portion. Let me draw it. What it will be? तो y हमारा पॉजिटिव अप साइड में है, सो दैट विल बी द अपर हाफ प्लेन. तो ये जो रीजन होगा दैट विल बी द आवर रिक्वायर्ड रीजन, दिस वन, राइट. सो दैट इज द हाफ प्लेन एक्चुअली. ओके, सो n अगर ग्रेटर देन 2 होता है देन हाफ स्पेस यू विल call it. So it will be your half space, half plane you can say. So it will be the upper half plane also you can say, जनरली जैसे हम कॉल करते थे ऐसे. तो इसकी बाउंड्री क्या होगी? दिस इज योर बाउंड्री. इस हाफ प्लेन की बाउंड्री हमारी क्या होगी? दिस वन. एंड व्हाट इज दिस वन? दिस इज एक्स एक्सिस. ओके, सो कहने का मीनिंग है जहाँ पर y मेरा जीरो है, सो एट दिस प्लेन y जीरो हियर, सो इट विल बी योर boundary. So you say that if we talk about the boundary of R2 plus, what it will be? That will be set of all x comma 0. Okay, that is nothing but what is this one? Or you can say that the set of all those x y where y is equal to 0. Okay, in this way also you can say. So this is the x axis, whole x axis. So that will be the boundary. If in particular we will say n equal to 3, so you will say that R3 plus. So what it will be? Set of all triplets in R3 x, y, z in R3, right, where z is positive, right? So you know that when x, y, z space you will take, so there will be the octants, 8 octants will be there. So if you have an idea, so you can visualize it. So there will be the 4 octant upside and 4 octant below, right? So that will be the positive z axis, and this you can say that is y axis, and this even you can say that this is x axis. Okay, so हमें क्या लेना है? हमें R3 प्लस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, R3 प्लस, सो व्हाट इट विल बी, जहाँ पर x, y, z ये ट्रिपलेट्स है और z पॉजिटिव है. सो z पॉजिटिव आपका कहाँ पर है? z पॉजिटिव है अप साइड में. ओके, सो यू विल से दैट इट विल बी, दैट विल बी द पोर्शन. सो ये सारा का सारा जो पोर्शन होगा अप साइड में, दैट विल बी कंसिडर्ड हियर. ओके, तो इसकी बाउंड्री हम क्या लेंगे? जहाँ पर z पॉजिटिव है ये वाला सारा रीजन, दिस इज अनबाउंडेड, यू कैन सी दैट दिस इज अनबाउंडेड. तो इसकी बाउंड्री क्या होगी? जो ये नीचे का प्लेन है हमारा पूरा पूरा एक्स वाई प्लेन, ओके, दैट ये नेगेटिव एक्स है, ये नेगेटिव वाई हो रहा है, राइट, नेगेटिव वाई एंड नेगेटिव एक्स, ये तो पूरा का पूरा जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन, दैट विल बी द बाउंड्री, राइट. कहने का मीनिंग है जहाँ पर z जीरो है. तो अगर मैं बाउंड्री ऑफ R3 प्लस लिखता हूँ, सो इट विल बी लाइक दिस एक्स वाई जेड, जहाँ पर z क्या है? जीरो है, इन सच दैट. ओके, और यू कैन से दैट एक्स वाई जीरो. तो वो क्या हो गया? मेरा पूरा का पूरा एक्स वाई प्लेन हो गया. दैट इज द बाउंड्री हियर, राइट. सो इसी तरीके से अगर ये मेरी बाउंड्री है, सो इफ यू वांट टू से दैट, राइट, इट इज द बाउंड्री. ओके, वी विल
Move on now. The region is unbounded, and boundary of Rn plus, it will be denoted by curl of Rn plus, and that will be set of all ordered pair, set of all points in Rn where this nth component is 0 बाउंड्री के लिए, राइट, जैसे अभी हमने बात की थी. सो ये हमारे Rn प्लस की ये नोटेशन होगी, ये इसकी बाउंड्री होगी. जहाँ पर nth कोऑर्डिनेट 0 होगा, दैट विल बी योर बाउंड्री, राइट. नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ सम पॉइंट इन Rn प्लस. तो हाफ स्पेस में अगर हम किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन शो करते हैं, हाउ इट विल बी. सो इफ देयर इज अ पॉइंट इन Rn प्लस इन हाफ स्पेस, देन इट्स रिफ्लेक्शन इन द प्लेन. तो रिफ्लेक्शन किसके अबाउट लेंगे हम, बाउंड्री के अबाउट लेंगे. Okay, so what it will be the reflection. So for example, let me show you by using the, if I talking about the xy plane, that means R2 plane if you are talking about. So कहीं पर भी अगर मैं पॉइंट ले रहा हूँ, तो ये मेरा क्या है, R2 प्लस है, ये अपर साइड वाला. ओके, तो अगर मैं यहाँ से इन बिटवीन कहीं पर एक पॉइंट लेता हूँ, so what if this point is xy where y is positive, right. अब what its रिफ्लेक्शन. सो इसकी बाउंड्री ये रही है आपकी, ये एक्स एक्सिस जो है ये इसकी बाउंड्री है. तो इसकी रिफ्लेक्शन क्या होगी, इतनी ही डिस्टेंस पर, एक्स एक्सिस जितना डिस्टेंस ऊपर है इतनी डिस्टेंस पर नीचे की साइड, दैट विल बी योर रिफ्लेक्शन. तो यहाँ पर ये आपका क्या रहेगा, एक्स एंड वाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव, राइट. सो दैट विल बी द रिफ्लेक्शन अबाउट द बाउंड्री ऑफ दिस रीजन. इस रीजन की बाउंड्री के अबाउट हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, राइट. सो सिमिलरली अगर R3 होता, सो R3 के केस में आप इस तरीके से लेते हैं. ओके, तो हमारा R3 प्लस क्या है, ये ऊपर वाला सारे रीजन है, राइट. सारा जो भी आपका रीजन होगा, राइट, अपर जो 4 ऑक्टेंट्स हो गए, दैट विल बी द R3 प्लस. तो वहाँ पर अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ एक्स वाई जेड, लेकिन वहाँ पर जेड क्या है, पॉजिटिव है, तो उसकी रिफ्लेक्शन क्या होगी, एक्स वाई प्लेन के अबाउट, क्योंकि एक्स वाई प्लेन क्या बाउंड्री है, उसके अबाउट मैं देखूंगा तो उसकी रिफ्लेक्शन बनेगी एक्स वाई और जेड जहाँ पर नेगेटिव है, एक्स वाई एंड माइनस जेड, राइट. सो दैट विल बी द रिफ्लेक्शन ऑफ एनी पॉइंट इन R3 प्लस अबाउट द बाउंड्री ऑफ R3 प्लस, राइट. सो दैट विल बी द रिफ्लेक्शन. इसी तरीके से अगर हम Rn प्लस की बात करते हैं, तो वहाँ पर मेरी रिफ्लेक्शन क्या होगी, रिफ्लेक्शन अबाउट द बाउंड्री, एंड बाउंड्री विल बी कर्ल ऑफ Rn प्लस. तो अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ Rn प्लस से, सो इट्स रिफ्लेक्शन विल बी x1 x2 x3 xn माइनस 1, लेकिन जो nth कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी द नेगेटिव 1, राइट. इस रिफ्लेक्शन को मैं डिनोट कर रहा हूँ x टिल्डा से, यानी कि x की रिफ्लेक्शन को मैं x टिल्डा से शो कर रहा हूँ. अगर x आपका Rn प्लस से बिलोंग करता है, तो x टिल्डा तो बिलोंग नहीं करेगा Rn प्लस से, क्योंकि Rn प्लस में तो वो सभी पॉइंट्स है जिसका nth कंपोनेंट क्या है, पॉजिटिव है. तो यहाँ पर इसे नेगेटिव शो करने के लिए केयरफुल दैट xn शुड बी पॉजिटिव, then only the minus of xn will be negative, na. So you will say that x tilde that doesn't belongs to Rn plus, right. And for fixed x we have already discussed that the character function. So few lectures back we have already discussed the definition of the character function. So we introduce some function phi x, जिसे डिनोट करते थे हम phi x of y. okay, तो ये phi x हम किस तरीके से डिनोट करते थे, डेट सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन इन u वेयर u इज द सबसेट ऑफ Rn, एंड phi x y विल बी इक्वल टू कैपिटल phi ऑफ y माइनस x ऑन द बाउंड्री ऑफ u, जहाँ पर ये कैपिटल phi क्या है, मेरा फंडामेंटल सोल्यूशन ऑफ द लाप्लास इक्वेशन. ओके, अब हमारा आइडिया क्या है, हम ये आइडिया लेकर चल रहे हैं कि दैट यू हैव टू फॉर्म द कैरेक्टर फंक्शन फ्रॉम कैपिटल phi by reflecting the singularity from x belongs to Rn plus to x tilde doesn't belongs to Rn plus. ओके, तो पहले हम Rn प्लस के पॉइंट से हम कहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, x tilde जो आपका Rn प्लस से बिलोंग नहीं करता. ओके, तो उसकी फॉर्म में हम निकालना चाह रहे हैं कि व्हाट विल बी द कैरेक्टर फंक्शन. सो वी डिफाइन अ फंक्शन, वी डिफाइन अ फंक्शन phi x y. So we defined it, phi x y is capital phi of y minus x tilde, right, where x y belongs to Rn plus. So what it will be, capital phi of, अगर मैं इसके कंपोनेंट लिखता हूँ, that will be y1 y2 y3 yn, and that will be x1 x2 x3 xn minus 1, and लास्ट वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस ऑफ xn.
सो जब इसके कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लोगे y1 माइनस x1 y2 माइनस x3 yn माइनस 1 माइनस xn माइनस 1 एंड लास्ट वन विल बी yn प्लस xn, राइट, इट विल बी देयर। एंड अगर हम फंडामेंटल सोल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन की बात करते हैं, व्हाट वाज दैट, दैट वाज द डेफिनेशन, n इक्वल टू 2 के लिए होता था और n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए वैल्यू होती थी, राइट। इफ वी थिंक अबाउट दिस capital phi of y minus x tilde, so if I take y equal to x tilde, so that will be the singular, okay, that function will be the singular because there will be the phi of 0 na. If I take y equal to x tilde, so there will be the phi of 0, and you can see here, if I take phi of 0, so phi of 0 log infinite, that will be infinite, and there will also 0, if I take that will be infinite, so that means function will be singular at x equal to 0, that means phi of 0 will be singular, right. So similarly here, if I take y equal to x tilde, so that will be phi of 0, so that has the singularity at y equal to x tilde, लेकिन x tilde तो आपको बिलोंग ही नहीं करता Rn प्लस से, राइट। सो दैट मीन्स ये सिंगुलैरिटी आपके Rn प्लस में नहीं होगी, सो यू से दैट फाई हैज़ नो सिंगुलैरिटी इन Rn प्लस, राइट। सो कैपिटल फाई ऑफ y माइनस एक्स टिल्डा हैज नो सिंगुलैरिटी इन Rn प्लस, लेकिन फाई ऑफ y माइनस एक्स टिल्डा हमने किससे नोट किया है, फाई एक्स वाई से, जो अभी हमने डिफाइन किया करेक्टर फंक्शन। इसका मीनिंग है जो करेक्टर फंक्शन है हैज़ नो सिंगुलैरिटी इन Rn प्लस, राइट। अब अगर हम फाई ऑफ y माइनस एक्स लिखते हैं तो सिमिलरली उसी डेफिनेशन का यूज करते हुए हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, जहाँ पे x था वहाँ पर हमने y माइनस एक्स यूज किया, सो लॉग ऑफ मॉड y माइनस एक्स, एंड यहाँ पर भी y माइनस एक्स रेज़्ड टू n माइनस 2 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ओके, और ये n इक्वल टू 2 के लिए थी वैल्यू, राइट। सो अब हम मेन क्या बात चेक करना चाह रहे हैं, वी वॉन्ट टू चेक दैट अगर हम करेक्टर फंक्शन के लिए बात करना चाह रहे हैं, ओके, सो करेक्टर सॉरी नॉट दिस करेक्टर फंक्शन के लिए हमने ये जो बात करना चाह रहे हैं फाई एक्स वाई, जो हमने डिफाइन किया है, व्हाट इज दैट, कैपिटल फाई ऑफ वाई माइनस एक्स टिल्डा। सो हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि अगर ये वाई आपका बाउंड्री में बिलोंग करता है, बाउंड्री ऑफ Rn प्लस, देन व्हाट विल बी, व्हाट इट्स वैल्यू विल बी, बिकॉज करेक्टर फंक्शन जब भी हम बात करते थे तो व्हाट वाज द करेक्टर फंक्शन, हम यू सबसेट ऑफ Rn लेके चलते थे, वहाँ पर हमने डिफाइन किया था कि फाई एक्स डेल्टा ऑफ फाई एक्स विल बी इक्वल टू 0 in u, and capital phi phi x y will be equal to capital phi of y minus x on the boundary, okay, जब आपका y belongs to boundary होगा। so if I take y belongs to the boundary, then what it happens to the character function, so we will take here y belongs to the boundary, so if I take y belongs to the boundary, so what it will be, so जो y आपका क्या है, having the n coordinates y1 y2 y3 yn, लेकिन अगर बाउंड्री से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब है ये nth जो कंपोनेंट है आपका वो 0 है, राइट। सो y का मीनिंग क्या है, y विल बी y1 y2 y3 yn माइनस 1 एंड nth कोऑर्डिनेट इज 0, राइट। सो इस तरीके से अगर मैं y माइनस एक्स टिल्डा निकालता हूँ, एक्स टिल्डा आपको पता है क्या है, एक्स टिल्डा है आपका x1 x2 x3 xn माइनस 1 और लास्ट वाला कोऑर्डिनेट है माइनस xn वेयर xn इज पॉजिटिव, राइट। और ये रहा आपका y, तो अगर मैं y माइनस एक्स टिल्डा निकालता हूँ तो इनका डिफरेंस क्या होगा, y1 माइनस x1 y2 माइनस x2 yn माइनस 1 माइनस xn माइनस 1 एंड 0 माइनस माइनस xn, तो क्या बनेगा प्लस xn, सो इट विल बी दिस वन। और अगर मैं सिंपल y माइनस एक्स निकालता हूँ तो y तो यही है आपका, और माइनस x का मीनिंग क्या है, सिंपल x, x1 x2 x3 xn माइनस 1 xn, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, y1 माइनस x1 y2 माइनस x2 yn माइनस 1 माइनस xn माइनस 1 एंड 0 माइनस xn इज माइनस xn, ओके। तो ये तो रहा आपका y माइनस एक्स, ये रहा, राइट। और y माइनस एक्स टिल्डा क्या है आपका, दिस इज y माइनस एक्स टिल्डा। तो अगर मैं मोड ऑफ y माइनस एक्स टिल्डा निकालता हूँ तो क्या आएगा, y1 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस yn माइनस 1 xn माइनस होल स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर, राइट, होल पावर 1/2, दैट विल बी द मॉडुलस वैल्यू ऑफ दिस वन। एंड मोड ऑफ अगर y माइनस एक्स का मोड निकालते हैं तो y1 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस yn माइनस 1 माइनस xn माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस xn का स्क्वायर, दैट विल बी xn स्क्वायर एंड पावर 1/2, okay। So what you observe from here, you can see that the mode of y minus x tilde and mode of y minus x is same, right, when y belongs to the boundary,
सो यू कैन से दैट द फाइव एक्स वाई जो हमने डिफाइन किया था दैट वाज कैपिटल फाइव ऑफ वाई माइनस एक्स टिल्डा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट फॉर एन इक्वल टू 2 दैट विल बी दिस वन एंड फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दिस विल बी दिस वन. ओके. सो जहाँ पर मेरा मोड ऑफ वाई माइनस एक्स टिल्डा आ रहा है लेकिन मोड ऑफ वाई माइनस एक्स टिल्डा किसके इक्वल है मोड ऑफ वाई माइनस एक्स के तो इसकी जगह मैं ये लिख देता हूँ मोड ऑफ वाई एक्स राइट एंड नीचे भी एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए भी मोड वाई माइनस एक्स टिल्डा की जगह लिख दूंगा मोड ऑफ वाई माइनस एक्स. ओके. सो अब जो ये आपके पास आया है व्हाट इज दिस वन this is capital phi of y minus x, right? So you say that that will be equal to capital phi of y minus x, right? So what you see here कि phi x y will be equal to capital phi of y minus x tilde will be equal to capital phi of y minus x when y belongs to the boundary of Rn plus, right? So we write down here जब y आपका boundary से belong कर रहा है then it will be this one phi of y minus x tilde will be same as phi of capital phi of y minus x, right? So इसी तरीके से अगर हम रीराइट करते हैं करेक्टर फंक्शन को तो करेक्टर फंक्शन की डेफिनेशन आपको पता है. करेक्टर फंक्शन क्या था अ फंक्शन फॉर यू सबसेट ऑफ आर एन डेल्टा ऑफ यू दैट मीन्स वो जो फंक्शन है वो सेटिस्फाई करेगा आपका लाप्लास इक्वेशन को. डेल्टा ऑफ आई एक्स विल बी जीरो इन यू ये होता था बट हमारे यहाँ पर क्या आर एन प्लस एंड आर एन प्लस इज द सबसेट ऑफ आर एन, right? So delta of phi x will satisfy the Laplace equation in Rn plus, right? So पहली बात तो ये हो गई ये हमने यहाँ पे लिखी है एंड अभी हमने डिफाइन किया कि प्रूव किया कि phi x y इज इक्वल टू कैपिटल फाई ऑफ वाई माइनस एक्स टिल्डा डिफाइन किया था लेकिन उसकी वैल्यू हमारी किसके इक्वल आई है कैपिटल फाई ऑफ वाई माइनस एक्स ऑन द बाउंड्री ऑफ Rn प्लस, राइट? एंड हमने एक चीज़ और ऑब्जर्व की है कि जो करेक्टर फंक्शन है फाई एक्स वाई दैट हैज़ नो सिंगुलैरिटी इन Rn प्लस. ओके. सो इन दिस वे वी गोट अ करेक्टर फंक्शन फाई एक्स विच विल बी built from the capital phi by reflecting the singularity from x belongs to Rn plus to x tilde doesn't belongs to Rn plus, right? So in this way we understand the corrector function. Now अगर हम ग्रीन फंक्शन की बात करते हैं if we talk about the green function for the half space Rn plus, so you know that green function will be defined by like this capital phi of y minus x minus phi xy where phi xy is the character function. लेकिन character function अभी हम बात कर चुके हैं for the half space, so we will write down its value that will be capital phi of y minus x tilde. Okay. So हम कहेंगे कि green function for the half space will be defined like this capital phi of y minus x minus capital phi of y minus x tilde where x tilde is the reflection of x in Rn plus about the boundary of Rn plus, right? Here all xy belongs to Rn plus and obviously they are different, right? In this way we see the green function for the half space. Now we will discuss the solution of the boundary value problem and the problem is here delta u is equal to 0 in Rn plus and u equal to g in boundary of Rn plus. Okay. So before few lectures back we have already discussed if there is any arbitrary function, okay, and that can be written in the form of ग्रीन फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते थे. तो हमारे पास जो इस तरीके की बाउंड्री वाली प्रॉब्लम होती थी उसका सॉल्यूशन हम इस फॉर्म में लिखते थे. एंड लेट मी रिकॉल दिस अगर u बिलोंग्स टू टू टाइम डिफरेंशिएबल इन Rn प्लस इज द सॉल्यूशन ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम. सो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम अगर मेरी इस तरीके से डेल्टा ऑफ u इज इक्वल टू माइनस एफ इन u एंड u इक्वल टू जी ऑन द बाउंड्री देन इसका सॉल्यूशन हमारा किस तरीके से दिया जाता था. In the previous lectures you can see that it was ux will be equal to g into curl g over curl nu over the surface of the u, okay, over the boundary of u, and it will be plus f into g over the u, okay, over the region, right, where x belongs to u is fixed here.
So it was the solution. So over here you can check that was the solution, right? So अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, हमारे यहाँ पर f नहीं है, f की जगह क्या है आपका 0। तो यहाँ पर जहाँ पर f दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि u के अंदर f क्या है आपका 0 है यहाँ पर, और u की जगह हमारा क्या है आर एन प्लस। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कर्ल ऑफ आर एन प्लस और ये हो जाएगा आर एन प्लस, राइट। तो यहाँ पर f हो जाएगा 0, सो ये सारा पार्ट बन जाएगा 0, सो देयर विल बी नो सेकेंड टर्म एंड देयर विल बी माइनस ऑफ स्मॉल g, बिकॉज u की वैल्यू g है ना आपकी बाउंड्री पर, यहाँ पर भी u की वैल्यू g थी, तो g को एज इट इज रहने दीजिए, इंटू कर्ल g ओवर कर्ल न्यू इंटू ds और द कर्ल ऑफ आर एन प्लस, राइट। सो इट विल बी लाइक दिस, in our case it will be this one, ux minus sign और this, right। सेकंड पार्ट आपका 0 था तो इसके लिए 0 लिख दिया, राइट। सो after using this term we can rewrite this term is as g into curl g over curl nu into ds over the boundary of Rn plus. So what is new here? New is the unit normal vector drawn outward to the region. Okay, it is the unit normal vector drawn outward to the region. So what it will be the, if we talk about the कि अगर हम न्यू की बात करते हैं, कर्ल जी और कर्ल न्यू इन R2 प्लस की बात करते हैं, तो R2 प्लस के अकॉर्डिंग मेरा क्या होगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो ये मेरा एक्स वाई प्लेन था, दैट इज द वाई एक्सिस पॉजिटिव और ये एक्स एक्सिस है। सो इसका जो अपर हाफ प्लेन था दैट इज R2 प्लस, ये R2 प्लस है, ओके, दिस इज R2 प्लस। सो अगर हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर लेना है हमने, दैट इज ड्रोन आउटवर्ड टू द रीजन, तो ये तो मेरा पूरा रीजन है, ये ऊपर का हमारा रीजन है सारा, और ये रही इसकी बाउंड्री। तो हम बाउंड्री पर लेंगे आउटवर्ड टू द रीजन, और ये रीजन ऊपर है, तो हमारा जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर आएगा दैट विल बी बिलो साइड, ओके। सो दैट मीन्स दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द वाई एन। वाई एन हमारा क्या है, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो मतलब नीचे जहाँ पर नेगेटिव है वाई, जहाँ पर नीचे नेगेटिव है उस डायरेक्शन में मेरा यूनिट नॉर्मल वेक्टर आएगा, ओके। सो फॉर दिस यू से दैट माइनस ऑफ वाई। एंड अगर मैं 3D प्लेन की बात करता हूँ, R3 प्लस की बात करते हैं, और तो R3 प्लस के लिए आपका ये हमारा रीजन है R3 प्लस सारा अपर, ओके। तो हमारा जेड पॉजिटिव है, अगर हम यूनिट नॉर्मल आउटवर्ड ड्रोन टू द रीजन, ओके। सो हमारा इसमें बाउंड्री क्या है, एक्स वाई प्लेन है। अगर हमने इस रीजन से बाहर की तरफ कोई नॉर्मल ड्रॉ करना है, दैट विल बी आउटसाइड, दैट मीन्स इट विल बी हियर। तो जेड हमारा पॉजिटिव ऊपर है, तो नीचे माइनस जेड की डायरेक्शन में होगा, ओके। या फिर ये कह सकते हो कि अगर मैं x1 x2 x3 से शो कर रहा हूँ, तो माइनस x3 के डायरेक्शन में होगा, जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस x3, राइट। सो इन दिस वे यू कैन थिंक ऑफ, ओके। तो अगर मैं हाफ स्पेस आर एन प्लस की बात कर रहा हूँ, तो उसकी बाउंड्री क्या है, कर्ल ऑफ आर एन प्लस, जो न्यू होगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ जो आपका लास्ट कोऑर्डिनेट है वाई एन, तो उसकी नेगेटिव ऑफ वाई एन की डायरेक्शन में होगा, राइट। सो देयरफॉर जो हमारा कर्ल जी ओवर कर्ल न्यू है दैट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ कर्ल जी ओवर कर्ल वाई एन, राइट। एंड दैट विल बी माइनस कर्ल बाय कर्ल वाई एन ऑफ जी, आपका क्या है हाफ स्पेस के लिए अभी हमने जी डिफाइन किया था, कैपिटल फाई ऑफ वाई माइनस एक्स माइनस कैपिटल फाई ऑफ वाई माइनस एक्स टिल्डा, राइट। सो वी राइट डाउन इट, it will be minus curl phi over curl yn plus curl phi of y minus x tilde over curl yn, right, it will be this one. So बस हमें ये दोनों टर्म निकालनी, ये दोनों टर्म निकाल के यहीं पर पुट कर दीजिए, दैट वी विल गेट, और कर्ल जी और कर्ल न्यू की वैल्यू आ जाती है तो हम इंटीग्रल में पुट कर देंगे, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ यू एक्स, ओके। सो मेन टास्क इज यू फाइंड दिस वैल्यूज। सो यू नो दैट व्हाट इज द कैपिटल फाई ऑफ y minus x, that is the definition of this one by using the fundamental solution of the Laplace equation. For n equal to 2 that will be this one, and for n greater than equal to 3 this value will be this one. So we take one by one. For n equal to 2 we will take first, okay. So for n equal to 2 if I take, so what is the capital phi y minus x, that is minus 1 over 2 pi log of mod y minus x. तो हमने क्या निकालना है, कर्ल phi over कर्ल yn. So कर्ल phi over कर्ल yn, what it will be, कर्ल by कर्ल yn of this one. तो minus 1 by 2 pi is common, constant, that can be taken outside, and that will be derivative of this one, partial derivative with respect to yn. So it will be 1 upon mod of y minus x into
partial derivative of mod y minus x with respect to yn. But what is mod y minus x? So mod of y minus x, you can see here, if we say mod of y minus x, that is this one, y1 minus x1 whole square plus y2 minus x2 whole square plus yn minus xn whole square होल पावर 1/2. तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना हमने विद रिस्पेक्ट टू yn. तो अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, व्हाट इट विल बी, सो 1/2 इंटू होल पावर माइनस 1/2, राइट, इंटू इन इंटीरियर जो टर्म्स है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू yn. तो ये जीरो ये सभी का जीरो हो जाएगा. लास्ट टर्म में मेरा yn है, तो वो मेरा क्या आएगा, 2 इंटू yn माइनस xn इंटू 1, राइट. सो इट विल बी yn माइनस xn डिवाइडेड बाय इस y1 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस yn माइनस xn होल स्क्वायर पावर 1/2. ओके, एंड व्हाट इज दिस टर्म जो डिनोमिनेटर में है, ये टर्म तो आपकी किसके इक्वल थी, मॉड ऑफ y माइनस x के इक्वल थी. तो इसकी जगह लिख दिया y मॉड ऑफ y माइनस x. तो कहने का मीनिंग है, अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू yn फाइंड आउट करता हूँ, सो इट विल बी गिवन बाय दिस वन. ओके, so in this way you get the value of this one. So what you have to do, just you place its value is this one, so I use this value over here. Okay, so minus 1/2 pi 1 by mod y minus x into yn minus x and divided by mod y minus x. If we rewrite the term, that will be this one, right. So n equal to 2 के लिए हमने बात की कि कल phi of y minus x अपॉन कल yn क्या होगा मेरा. अब n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए बात करते हैं. सो व्हेन n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, सो जस्ट हमने यहाँ पे रखा है कल कैपिटल फाई ऑफ वाई माइनस एक्स अपॉन कल वाई एन है. तो हमने कल वाई एन ऑफ फाई की वैल्यू रखी है n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, दैट विल बी दिस वन. ओके, यू कैन चेक दैट दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, दैट कैन टेकन आउटसाइड. ओके, जब इसका डेरिवेटिव करोगे आप, तो न्यूमिनेटर में जाकर टर्म हो जाएगी मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स पावर 2 माइनस एन. सो इट्स डेरिवेटिव विल बी 2 माइनस एन होल पावर 1 माइनस एन, एंड 1 माइनस एन को दोबारा एडजस्ट करोगे, दैट विल मॉड ऑफ y माइनस एक्स डिनोमिनेटर में जाकर n माइनस 1 पावर हो जाएगी. ओके, इनटू डेरिवेटिव ऑफ मॉड y माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू yn. ओके, और वो अभी हमने सोल्व किया है कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू yn क्या होगा, yn माइनस एक्स डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ y माइनस एक्स. ओके, अगर इसी को हम रीराइट करते हैं, जस्ट सिंप्लीफाई दिस टर्म एंड इट विल बी राइट दिस माइनस ऑफ yn माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n अल्फा n, और ये पावर को कंबाइन करके बन जाएगा मॉड y माइनस एक्स पावर n, राइट. सो हमारी n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए भी वैल्यू पता चल गई. ओके, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए हमने वैल्यू निकाली है, तब आपकी ये आ रही है. और यही वैल्यू अगर मैं n इक्वल टू 2 के लिए निकालता हूँ, सपोज दैट फॉर n इक्वल टू 2, सो n इक्वल टू 2 के लिए मेरी वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी माइनस ऑफ y2 माइनस x2 एंड डिवाइडेड बाई n अल्फा 2 अल्फा 2, और अल्फा 2 क्या होगा, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉल इन R2. तो बॉल इन R2 में बॉल हमारी क्या होगी, दैट इज द सर्कल यूनिट बॉल. सो उसका हमारा जो एरिया क्या बनेगा आपका, दैट विल बी द पाई आर स्क्वायर. लेकिन आर आपका 1 है तो बनेगा पाई, सो इट विल बी 2 पाई, एंड यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका मॉड y माइनस एक्स स्क्वायर. राइट, सो यहाँ पर ये चेक कर सकते हो, जो वैल्यू है आपकी n इक्वल टू 2 के लिए. ओके, फॉर n इक्वल टू 2 इट विल बी दिस वन. ओके, राइट, दैट विल बी दिस वन. सो इट विल बी yn माइनस xn डिवाइडेड बाय mod y माइनस x होल पावर दिस वन, राइट. Here also you can say that for n equal to 2, if you find out its value, that will be y2 minus x2, अगर हम उसके लिए बात करते हैं, राइट. सो इसी तरीके से अगर मैं कंबाइन करता हूँ इसे, तो दोनों टर्म को कंबाइन करके कह सकता हूँ कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए हमारा ये वैल्यू आ रही है. यू कैन से दैट फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कल कैपिटल फाई ओवर कल y n विल बी इक्वल टू लाइक दिस, राइट. अब हमारे पास ये पार्शियल डेरिवेटिव निकल चुका है विद रिस्पेक्ट टू वाई एन. अब हमें निकालना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एन ऑफ 5y माइनस एक्स टिल्डा का. लेकिन एक्स टिल्डा और एक्स में क्या डिफरेंस है, जस्ट जहाँ पर मेरा एक्स एन था, और इसमें एक्स टिल्डा में क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स एन होगा.
तो इसमें जहाँ पे एक्सन आ रहा है वहाँ पे उसे माइनस एक्सन चेंज कर दो। तो यहाँ पे एक्सन है तो इसका माइनस एक्सन चेंज करो तो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ न्यूमिनेटर में बनेगा वाई एन प्लस एक्सन, और बाकी तो सेम रहेगा, एन अल्फा एन वाई माइनस एक्स जे क्या है, एक्स टिल्डा, वाई माइनस एक्स टिल्डा होल पावर एन, राइट। सो इन दिस वे यू सोल्व दिस वैल्यू। तो हमारी दोनों वैल्यू पता चल गई। ये दोनों वैल्यू पता होने के बाद वी हैव टू जस्ट प्लेस दिस वैल्यू ओवर हियर। तो ये वैल्यू हमें करनी है इक्वेशन नंबर 2 में पुट, तो हमें यहाँ पर पुट करनी थी ये वैल्यू। तो ये दोनों के दोनों वैल्यू उठा लीजिए, तो कल जी और कल न्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी। सो फ्रॉम हियर यू कैन से दैट कल जी और कल न्यू विल बी गिवन लाइक दिस, ओके, डेट विल बी माइनस कल जी और कल वाई एन, इट वाज, दोनों की वैल्यू पुट कर दी। ये इसकी वैल्यू हमारी ये रही एंड इसकी वैल्यू माइनस माइनस से प्लस हो गई लाइक दिस, ओके। अगेन इफ I send this negative sign inside the bracket, we will get this one. This becomes positive and that term becomes negative, right? So if we say if y, this y belongs to the boundary of Rn plus, तो अगर y belongs to boundary of Rn plus, you know that कि उसका nth कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि yn तो जीरो होगा। लेकिन हमें पता है जब y आपका बाउंड्री से बिलोंग करता था तब मोड ऑफ y माइनस एक्स की वैल्यू मोड ऑफ y माइनस एक्स टिल्डा के इक्वल आती थी, ओके। तो अगर मैं इसी केस में, इस केस में अगर मैं y बिलोंग्स टू बाउंड्री ऑफ आर एन प्लस लेता हूँ तो यू विल से दैट ये वैल्यू दोनों सेम होगी, ओके। और यहाँ पर वाई एन जीरो हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स है ना ऊपर, और यहाँ पे वाई एन जीरो हो जाएगा, ये भी माइनस एक्स एन है, तो ऊपर तो बन जाएगा माइनस टू एक्स एन, और नीचे बन जाएगा एन अल्फा एन डिवाइडेड बाय, ओ सॉरी, एन अल्फा एन इंटू मोड ऑफ वाई माइनस एक्स पावर एन, राइट। क्योंकि आपका दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी तो आपका जो एलसीएम है दैट विल बी द सेम, राइट। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कल जी और कल न्यू। तो हमें क्या करना है, जो पहले इक्वेशन आई थी सॉल्व करके, बस उसमें कल जी और कल न्यू की वैल्यू है हमें वहाँ पे प्लेस करनी है, ओके। सो वी विल जस्ट प्लेस द वैल्यू ऑफ कल जी और कल न्यू इन द इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी आपकी, माइनस ऑफ इंटीग्रल ओवर द बाउंड्री ऑफ कल आर एन जी इंटू कल जी और कल न्यू था, लेकिन कल जी और कल न्यू की वैल्यू ये आ गई, तो हमने यहाँ पे प्लेस की डी एस वाई, राइट। नाउ minus minus plus that will be 2xn into n alpha n कल gy divided by mod y minus x raised to power n dsy, okay, where x belongs to Rn is fixed. So here this value, I say this value is kxy, so I call this value. So if we define this value by kxy, this is the Poisson kernel for the Rn plus, okay. So जो ये टर्म है, सो हमारी 2xn डिवाइड बाई एन अल्फा एन इंटू मोड वाई माइनस एक्स रेस्ट पावर एन, इसको हम के एक्स वाई से डिनोट करते हैं, विच इज नोन एज पॉइसन कर्नल फॉर आर एन प्लस, ओके, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर एन प्लस एंड वाई बिलोंग्स टू द बाउंड्री, राइट। सो इन टर्म्स ऑफ द पॉइसन कर्नल वी फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ द बाउंड्री वाली प्रॉब्लम। तो यू एक्स हमारे पास क्या आ गया, ये हो गया जी, और इंटू में ये सारा क्या है बाकी बचा हुआ के एक्स वाई, सो जी इंटू के एक्स वाई डी एस ओवर द बाउंड्री, ओके। और जो ये सोल्यूशन आया इस सोल्यूशन को बोलते हैं पॉइसन फार्मूला, राइट। दिस इज कॉल्ड द पॉइसन फार्मूला फॉर आर एन प्लस, विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन बाउंड्री वाला प्रॉब्लम, राइट। सो रिमेंबर दिस सोल्यूशन. So the next topic we will discuss in the next class. Thank you very much, students.